Hi guys, now the phase 1 of SEBI grade A legal exam is over. What is the next step? The next step is to start the preparation for phase 2, and you have to prepare it very well because the marks of the phase 2 will be considered for the purpose of your selection. Phase 1 was qualifying in nature, right? There you just needed to score 80 out of 200, but here there is no relevance of cutoff. Yahan par you have to perform, you have to give your best so that you will be in the top 75 candidates who will be appearing for the interview itself. So that you have to give your best in the phase 2 guys, and for that you have to start your preparation फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब है जो मेन लड़ाई आपकी स्टार्ट हुई है, दैट इज द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. सो गाइज यू नो वेरी वेल यू हैव हार्डली 33 days left for the phase 2 of the examination. So यहाँ पे you have to cover very वास्ट सिलेबस, दैट इज कॉर्पोरेट लॉज, क्रिमिनल लॉ, सिक्योरिटीज लॉज. आपको ये सारी चीजें कवर करनी है गाइज, एंड विच इज वेरी वास्ट, एंड कवरिंग each and every component of the syllabus is difficult, though not impossible, is difficult, but you have to strategize it very well so that you can prepare it very well for the examination itself, right? So yahan par is video mein we are going to discuss the most important topics of phase 2 paper 2, right? So here you can see we are going to discuss most important topics of paper 2 of phase 2 of the examination. Do I mean that you just have to cover these topics? No guys, I'm not supposed to say anything that you just have to cover these topics. You have to cover each and everything that is mentioned in the syllabus, but the topics that we are going to discuss, you have to keep them on priority. You have to revise them multiple times because they are the most important topics that I am going to tell you. तो आपको इन्हें प्रायोरिटी पर रखना है, प्रायोरिटी पर प्रिपेयर करना है, and you have to revise it multiple times, क्योंकि बहुत ज़्यादा probability है कि most of the questions will be there from these topics itself that we are going to discuss, right? चलिए स्टार्ट करते हैं then. But before starting, one very important thing guys, again I'm repeating it, that previous year questions very important, very important, right? So that you have to refer PYQ so that you will get the idea कि किस टाइप के क्वेश्चन, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आते हैं, that you can analyze only after analyzing the previous year question, right? So guys previous year question आपको रेफर करने हैं और day 1 से ही रेफर करने हैं, right? ये मत सोचिए कि एक बार मैं पूरा सिलेबस कर लेता हूं, then at the last I will be referring previous year question. That is the poor strategy, that is the bad strategy, right? You just have to start referring previous year question from today onwards. रेफर करिए, फिर किसी टॉपिक को स्टार्ट करिए so that you will get the clarity कि मुझे किस टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना है, कितनी डेप्थ पर पढ़ना है, right? Now one very big challenge in the case of previous year question that they are not freely available, right? So guys क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ पेपर इज डिफिकल्ट, बट वी हैव कंपाइल्ड फॉर यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2022 एंड 2020 व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो गो टू द लिंक, डाउनलोड इट एंड रेफर इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड सिंस यू जस्ट हैव 33 डेज इन योर हैंड गाइस, इस बचे हुए पीरियड में आपको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करने हैं, प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, और आपको प्रॉपर रिवीजन करना है एंड प्रैक्टिस करना है. दीज ऑल आर सम की रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, राइट? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. The most important topics of paper 2 of phase 2. First of all, let's see the syllabus here. So you can see the syllabus here along with the weightage. So there are 4 components, right, in your phase 2 syllabus, that is criminal law, law of evidence, corporate laws, and securities laws. These are 4 basically components of your phase 2 paper 2 syllabus, and the weightage you can see here. If I talk about criminal law, so that contains the weightage of 30%. If I talk about corporate laws, so that contains the weightage of 30%. And if I talk about securities laws, so that contains the weightage of 40%. Guys 40% weightage बहुत बड़ा होता है securities laws में. Earlier it used to be 20%, but this year they have increased it to 40%, जिसका मतलब है कि ये component बहुत ज़्यादा important है. And if you do not have command over securities laws, आपके जो selection के जो chances हैं थोड़े से definitely कम हो जाएंगे, right? So in order to get selected, you have to focus, you have to have complete command over the securities laws. इस पे आपको कंप्लीट कमांड रखना है, राइट? बट नाउ गाइस यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे आईपीसी के भी बहुत सारे चैप्टर्स मेंशन है, राइट? यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉज के नाम पे कंपनीज एक्ट दिया है विच कंटेन्स 29 चैप्टर्स. सो इस रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि लगभग 1 मंथ का टाइम है, उसमें क्या ये सारी चीजें कवर कर पाना ईजी है? नहीं गाइस, बिल्कुल ईजी नहीं है. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पार्ट, कि यहाँ से आपको क्या प्रिपेयर करना है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करना है, आपको रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने हैं. बट द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड more than 90% question from each component will be asked
from these topics itself, right? चलेगा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. So if I talk about Indian Penal Code, right? So from the Indian Penal Code, these all are the chapters that you have to prepare. Like chapter number 2 जनरल एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. देन चैप्टर नंबर 3 पनिशमेंट, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन बी आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट 2, राइट? सो यू नो वेरी वेल दैट 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट हैव बीन एडेड दिस ईयर बाय द सेबी इन द सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जाम. सो यहाँ पे जो 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 10 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ में से आएगा, 10 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉज में से आएगा और 10 मार्क्स का सिक्योरिटीज लॉज में से आएगा, राइट? दिस इज द बेसिकली एक आइडिया है ऐसा, ठीक है? तो इफ आई टॉक अबाउट आईपीसी, सो यहाँ पे पनिशमेंट जो चैप्टर 3 पनिशमेंट है, यहां से टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पूछा जा सकता है आपके बेसिकली एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, राइट? सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन चैप्टर 4 इज जनरल एक्सेप्शंस. जनरल एक्सेप्शंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यहां से भी आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही. देन नेक्स्ट इज चैप्टर 5 ए, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर. चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहां से आपको केस लॉज आएंगे गाइज, केस लॉज जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 17. एंड देन चैप्टर 21 डिफेमेशन, राइट? सो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको प्रायोरिटी पर कवर करने हैं. इसके बाद यू हैव टू कवर रेस्ट ऑफ द सिलेबस. गाइस आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ यही प्रिपेयर करना है, इन्हें प्रिपेयर करना है, बट प्रायोरिटी पर प्रिपेयर करना है. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं दैट यू कैन प्रिपेयर, ठीक है? बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द इंडियन पीनल कोड. इफ आई टॉक अबाउट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वैसे बहुत वास्ट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं गाइस, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट 30%, राइट? सो ये दोनों ही कंपोनेंट मिलके बनते हैं 30% टिल इंडियन एविडेंस एक्ट. तो यहाँ पे 30% के वेटेज में गाइस आपका लगभग 20% विल बी फ्रॉम द इंडियन पीनल कोड इटसेल्फ, राइट? देन उसके बाद आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे 5 to 7% आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे. तो रेस्ट आपके जो 3 to 5% बच रहा है दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. तो बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा इसमें कि आप पूरा सीआरपीसी पढ़ने बैठ जाए और आपने 10 दिन वहां पे वेस्ट कर दिए, राइट? तो उसको इसी तरीके से आपको प्लान करना है कि रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से आप कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पीनल कोड, जो भी चैप्टर्स मेंशन है वो उनमें से प्रायोरिटी पर ये. देन यू विल रेफर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है? बहुत बड़ा एक्ट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. देन यू एट द एंड यू विल बी रेफरिंग द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वहां से लास्ट में रेफर करेंगे और बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे. इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे फ्रॉम द सीआरपीसी, राइट? दिस शुड बी द स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल लॉज. इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, सो कंपनीज एक्ट में गाइज यू नो वेरी वेल देयर आर 29 चैप्टर्स, ठीक है? 29 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में, बट सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है और उनको पढ़ पाना भी पॉसिबल नहीं है इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, राइट? सो फ्रॉम द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ यू जस्ट नीड टू रेफर दीज 14 चैप्टर्स. ये 14 चैप्टर्स आप रेफर करेंगे गाइज एंड दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स ओनली, राइट? तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी विच कंटेन्स द डेफिनेशन वगैरह, अगेन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर. चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स. चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. चैप्टर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. यहाँ पे फैक्चुअल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले चैप्टर में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चैप्टर 9 इज अकाउंट ऑफ कंपनीज, अगेन इंपॉर्टेंट. चैप्टर 10 इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स. यहाँ ऑडिटर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? वहां पे चीजें पूछ लेते हैं ऑडिटर से रिलेटेड, इसकी अपॉइंटमेंट कब होगी, रेजिग्नेशन कैसे हो सकता है, राइट? रिमूवल कैसे हो सकता है, ठीक है? सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 11 इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन चैप्टर 12 इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर. यहाँ पे मीटिंग का ड्यूरेशन, उसके बीच में गैप, राइट? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. देन चैप्टर 13 इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. यहाँ पर रेम्यूनरेशन की क्या लिमिट होनी चाहिए, बेसिकली कितना पे किया जाता है, राइट? तो वो सारे प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन चैप्टर 15 इज कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 27 इज एनसीएलटी एंड एनसीएलटी. इसमें से जो रिक्वायरमेंट्स होती है एनसीएलटी के चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, उनका एज क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ से है जो पूछे जाते हैं फ्रॉम द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी से. देन चैप्टर 28 आपका स्पेशल कोर्ट्स,
अगेन इंपॉर्टेंट स्पेशल कोर्स कौन स्टैब्लिश करता है, क्या पर्पस होता है, दीज ऑल आर द थिंग्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये 14 चैप्टर्स वो चैप्टर्स है गाइस फ्रॉम द कंपनीज एक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रेफर इट। ठीक है, आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहीं से अगर आपने कर लिया मोर देन 90% टॉप क्वेश्चंस जो आपके कंपनीज एक्ट में से आएंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि मोर देन 90% जो है यहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स। बट इसका ये मतलब नहीं कि रिमेनिंग चैप्टर्स आपको छोड़ने हैं, यू हैव टू कवर देम एज वेल, बट प्रायोरिटी में इसको कवर करिए, मल्टीपल रिविजन इसको दीजिए, उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज में और भी एक्ट है, आईबीसी है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, वो भी लिमिटेड ही पढ़ना है आपको, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। देन एलएलपी एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा सा एक्ट है बट इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो वो पूरा एक्ट पढ़ना है आपको, बहुत बड़े एक्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटे एक्ट है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो जो चीजें आप कर सकते हैं गाइस उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि यू हैव टू डू इट थॉरोली, राइट। जो चीजें बहुत बड़ी हैं उसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं, लाइक आईपीसी हो गया, लाइक कंपनीज एक्ट हो गया, उसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें इस तरीके से लिमिटेड चीजें पहले पढ़नी है प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन यू हैव टू मूव टू द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल लॉज एंड द कॉर्पोरेट लॉज। नाउ गाइस नेक्स्ट इज द सिक्योरिटीज लॉज। यू नो वेरी वेल दैट 40% वेटेज है इसका, 40% वेटेज, राइट। अब इसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन है, व्हाटएवर टॉपिक्स आर मेंशन इन द सिलेबस, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। यहां पे इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि दिस इज द कोर एरिया ऑफ सेबी, ठीक है, सेबी का कोर एरिया है। तो यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये पढ़ना है ये छोड़ना है, आपको यहां पे सब पढ़ना है, बट प्रायोरिटी जो है दैट आई विल टेल यू कि किस प्रायोरिटी में यू विल कवर, सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द basic concept, the basic provisions that will be asked in the examination, right? So first of all, in securities laws you will read the SEBI Act, right? Securities and Exchange Board of India 1992, ये वाला जो एक्ट है you will refer, after that you will refer this rule, that is Securities Appellate Tribunal Procedure Rules 2000, ठीक है। इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इनको कवर करना, ठीक है। After this rule, you will read the SEBI Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market Regulations 2003. ठीक है, then you will move to the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015. After that, you will read SEBI Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalty Rules 1995. ठीक है, इसी तरीके से पढ़ेंगे कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस। देन उसके बाद आप मूव करेंगे सेकंड एक्ट में, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इस एक्ट में आप मूव करेंगे, फिर इसके जो रेगुलेशन है दैट यू विल रीड, दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रेगुलेशंस 2018, ठीक है। देन यू विल मूव टू द थर्ड एक्ट, दैट इज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018, और लास्ट में यू विल रीड सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशंस 2011। तो इसी सीक्वेंस में यू विल रीड द सिक्योरिटीज लॉज। अब यहां पे बहुत सारा डाउट भी आ रहा होगा आपके मन में कि व्हाट शुड बी द सोर्स। सो गाइस सोल सोर्स है इसका फेज 2 का बेयर एक्ट, ठीक है, बेयर एक्ट इज द सोल सोर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो गाइस डू रेफर द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे टॉपर्स ने भी ऐसा बोला हुआ है कि हमने डायरेक्टली बेयर एक्ट ही रेफर किया था, क्योंकि डायरेक्टली वहां से सेक्शंस के जो प्रोविजंस होते हैं वहां से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन। सो इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड रेफर द बेयर एक्ट। और जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं सो वहां पे बहुत ज्यादा बल्कि भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेबी एग्जामिनेशन, राइट। क्या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी एग्जामिनेशन देन इन दैट केस यू कैन रेफर द रेफरेंस बुक्स, बट हियर सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन सो देयर बेयर एक्ट इज सफिशिएंट, राइट। सिर्फ बेयर एक्ट ही रेफर करिए, समझ में आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, आपने 3 साल 5 साल आपने लॉ पढ़ी है, यू नो वेरी वेल हाउ टू इंटरप्रेट लॉज, हाउ टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू नो वेरी वेल, राइट। यू हैव द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इस फियर को अलग कर दीजिए, ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आएगा, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द लॉज, सो जस्ट यू हैव टू रेफर द बेयर एक्ट एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में इस लिमिटेड 1 मंथ के टाइम पीरियड में, दिस इज ऑल अबाउट दिस। बट गाइज इसके अलावा कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा, सर मैं नहीं समझ पाऊंगा किस तरीके से प्रोसीड करूं, आई डू नॉट हैव स्टडी प्लान, आई डू नॉट हैव टाइम टेबल, आई डू नॉट हैव डिसिप्लिन कि मैं किस तरीके से चीजों को प्रोसीड करूं। सो गाइज फॉर देम We have launched 2 different courses for phase 2। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट कोर्सेस यहाँ पे हमने लॉन्च किया है, दैट इज द
टेस्ट सीरीज एंड द लाइव क्रैश कोर्स फॉर फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में व्हाट यू विल गेट चैप्टर वाइज टेस्ट। सो सेम इज द केस विद, जैसा हमने डिस्कस किया कि आपके आईपीसी में अलग अलग चैप्टर्स रहे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सेम आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। सेम इज द केस विद सिक्योरिटीज लॉज एज वेल, कि यहाँ पे आपको जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, जो भी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यू विल गेट द चैप्टर वाइज टेस्ट, right? So this is the one feature. Second feature is full length test with evaluation, guys. I already told you कि प्रैक्टिस तो आपको करना है, आपको पढ़ना है, you have to revise it and you have to practice it. This should be the basic rule that you have to follow, right? So यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आप providing you full length test, जहाँ पे 5 full length test will be provided for paper 2 and 2 full length test will be provided for paper 1 and all will be evaluated. जो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है गाइस, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी 30 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है, दैट विल बी इवैल्यूएटेड बाय एक्सपर्ट्स एंड दे विल टेल यू कि व्हाट आर द एरियाज वेयर यू नीड टू इंप्रूव, राइट। ये बहुत ही यूनिक फीचर है गाइस कि आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट विल बी गिवन टू यू, ठीक है। आपको जो भी डाउट है, क्योंकि इस प्रिपरेशन जर्नी में ड्यूरिंग दिस 1 मंथ पीरियड आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे आपके मन में फियर आएंगे, ठीक है। आपको लगेगा मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सो इन दैट केस वी आर प्रोवाइडिंग यू 1-to-1 mentor support, right? And second is a live crash course. Live crash course एक second बहुत ही important हमारा कोर्स है यहाँ पे। What is the unique feature of this course? The unique feature is that we are providing you live classes. Live classes will be provided for paper 1 also, for paper 2 also. और यहाँ पे we are especially focusing on corporate laws and securities laws. इनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीप में कवर कराया जाएगा। टॉपिक सारे कवर कराए जाएंगे, लेकिन यहां पे स्पेशल फोकस रहेगा सिक्योरिटीज लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज पर, क्योंकि इट हैज अ कंबाइंड वेटेज ऑफ 70%, राइट। सो वी आर गोइंग टू फोकस मोर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप में, जितना रिक्वायर्ड है सेबी ग्रेड एग्जाम के लिए, दैट वी विल टीच यू इन द लाइव क्लासेस। सो लाइव क्लासेस विल बी गिवन पेपर 1 इंग्लिश के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव पार्ट पेपर 2 के लिए भी और ऑब्जेक्टिव पार्ट पेपर 2 के लिए भी वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, जो कि स्टार्ट होने वाली गाइस 14th से, ठीक है। तो लाइव क्लासेस विल बी गिवन, शॉर्ट नोट्स जो भी आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऑल द फीचर ऑफ टेस्ट सीरीज आल्सो, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इन द टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, 1-to-1 mentorship support, right? So that you will get in the test series as well, that you will get in the crash course as well. So सारे टेस्ट सीरीज का सारा फीचर यहाँ पे आपको मिलेगा एंड 1-to-1 मेंटर सपोर्ट तो मिलेगा ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा था क्या यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा फीचर है दैट इज द लाइव क्लासेस, ठीक है। दिस इज द एक्स्ट्रा फीचर इन द क्रैश कोर्स फेज 2। तो गाइज यहाँ पे इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन के साथ आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा गाइस, तो आप एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स गाइस, यू कैन जस्ट चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे सारे चीजें जो भी ऑफर्स हैं, जो भी कोड अवेलेबल है, दैट यू कैन अवेल। और यहाँ पे इसको आप लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, तो उसको आप अवेल करके यहाँ पे इस कोर्स को ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, वेयर यू गॉट टू नो कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस प्रायोरिटी पर पढ़ने हैं, ठीक है, किसको पहले ज्यादा फोकस रखना है, सीक्वेंस क्या रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।